Good afternoon and Om Shanti. It's my proud privilege to be here and meet all of you, the seekers of knowledge. We were listening to very insightful and very enlightened words by Swamiji. And there was a very interesting point that I noted. I would like to ask all of you, are you spiritual? Are you spiritual? You are? Are you sure? That's so nice to hear. Because sometimes there is some confusion. Okay, religious could be a point of, different understandings. Could be a choice, but when we say spiritual, it is something very simple. It's very deeply related to education, because spiritual means, in very simple language, spiritual is when you are good for yourself and when you are good for everyone. Agree? Being spiritual means अपने से भी अच्छा रहना और सबके लिए अच्छा रहना. So that you are, aren't you? Yes? Can you show me your hands? That you are. And so that is why it is deeply connected to education, because education is, to what we were listening, an expression of that perfection already present, or we could say it is to educe. Education is to educe. Educe means to bring out from within. Education is not just, pouring in information from outside. It is to bring out those great qualities which already are there within you. And so, this song that you were referring to is something that is very helpful, because that helps us to focus on that which is so pure and positive within. So do you like singing? You like music, but do you like to sing? You do? At least bathroom sing? Yes? Okay. So please, let's listen to this song. Just few lines, and try to focus on the meaning and the feeling behind the song. The song is like this. I'll sing first and later you can join. ये मत कहो खुदा से. No, I'm singing, please, don't play the music. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम. आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम. तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. So, what to focus on? जब मुश्किल आती है, जब कोई कठिनाई आती है, तो हम सोचते रहते हैं, ओह दिस इज़ वेरी टफ, ये मुश्किल है, ये टेंशन है, ये प्रॉब्लम है. तो जितना हम किसी चीज़ पे फोकस करेंगे, द प्रिंसिपल, जितना किसी चीज़ पे फोकस करेंगे वो चीज़ बड़ी हो जाएगी. मैग्नीफाइंग ग्लास और दैट कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल, फोकस करो बड़ा हो जाएगा. सो अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के बजाय किस पर फोकस करें? सॉल्यूशंस पे. और वो सॉल्यूशंस कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है. वो सॉल्यूशन आपके अंदर है. आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी पे आप फोकस करेंगे
तो वो एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, और अपने अंदर पॉजिटिविटी देखेंगे तो बाहर जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस हैं, उसके अंदर भी क्या पॉजिटिव है लेने का, वो समझ में आएगा। यू नो, एजुकेशन इज अबाउट हाउ टू बी हैप्पी। डू यू एग्री? मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पढ़ लिख कर एक लेवल पार कर लेते हैं ना, उसके बाद सोचते हैं कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, हैप्पी रहना नहीं आता है तो क्यों कर रहे हैं। एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग। I have seen majority of people who, you know, have reached that level. After that they start working for making people more happy, people more strengthened. I think Swamiji is a wonderful example for that. Am I right, Swamiji? Wonderful example. Yes? Yes, beginning means you had reached that level at that time. Definitely. So, what I am trying to say, कि जीवन में हमें खुश रहना है तो उसके लिए हमें अपने मन को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक हमें ये सीखने को कहाँ मिला कि सोचें कैसे। किसी ने सिखाया हाउ टू थिंक? सिखाया? चलना सिखाया, बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सीखा, हमने सब कुछ करना सीखा, लेकिन सोचना कैसे? जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी क्या सोचना चाहिए उस टाइम, सीखा हमने। जब कोई हमसे बुरा व्यवहार करे, जब हमें कोई क्रिटिसाइज़ करे, जब हमें कोई नीचा दिखाए, जब हमारे सामने देखने में आए कि फेलियर हो गया, उस समय सोचना क्या? जब डिफ़िकल्ट आए तब सोचना क्या? वो अगर हमने सीख लिया तो हम जीवन की हर परिस्थिति में पार करेंगे। सो विद दिस सॉन्ग आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू वन स्मॉल थिंग, कि जब हमारी लाइफ में गुड टाइम्स आते हैं ना, अच्छे टाइम, हम समझते हैं कि वो टाइम बहुत अच्छे होते हैं, हमें ऊपर ले जा रहे होते हैं। और जब बैड टाइम्स आते हैं, मुश्किल आती है सामने, तो हमें लगता है कि ये हमें नीचे ले जा रहे हैं। राइट? राइट? होता है ऐसे, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। सो बैड टाइम्स, डिफ़िकल्टीज़, एडवर्सिटीज़, ये सब जब सामने आते हैं तो एक चीज़ याद रखना, लाइफ में जितनी एडवर्सिटी आए, नेगेटिविटी आए आपके सामने, वो आपके अंदर की अच्छाई को, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर निकालने के लिए आई है। क्यों आई है? आपको स्ट्रेंथन करने के लिए आई है। हीरा होता है ना, हीरा कैसे बनता है? हीरा तो ऑलरेडी हीरा है, पर उसको कट करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, कितना फ्रिक्शन होता है, कितना उसको सहन करना पड़ता है, तब उसके अंदर की जो चमक है वो बाहर निकलती है। एड्यूस, टू एजुकेट, टू एड्यूस, हमारे अंदर की भी क्वालिटीज़ बाहर कैसे निकलेंगी? अगर सब कुछ कंफर्टेबल होता, सब कुछ इजी होता, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम स्ट्रॉन्ग होते। हाँ, हमारे अंदर की जो क्वालिटी है वो निकल के आती बाहर? कभी नहीं आती। इसलिए गुड टाइम्स आर देयर टू स्ट्रेंथन एंड बैड टाइम्स आर देयर टू स्ट्रेंथन मी, एंड गुड टाइम्स आर एग्जामिनेशन। गुड टाइम्स आर एग्जामिनेशन। जब अच्छा सब चल रहा हो ना, तो उस समय क्या होता है, जब बहुत सक्सेस मिल रही हो, वाह मिल रही हो, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हो, उस समय लगता है वाह, हाँ मैं तो क्या हूँ, अहंकार आ जाता है। हाँ, और उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जहाँ अहंकार आया, डाउनफॉल शुरू। इसीलिए गुड टाइम्स, सक्सेसफुल टाइम्स, हैप्पी टाइम्स, यू नीड टू बी वेरी अलर्ट कि हम कहीं नीचे की ओर ना जाएं। वो हमारे अंदर की अच्छाई की जो स्पार्क है, जो कुछ करने की इच्छा है, कुछ बनने की इच्छा है, वो बनी रहे, ख़त्म ना हो जाए। सो
अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। Thank you so much. I would invite you to join me for 2 minutes in an experience of looking inwards. एक हम भीतर अपने अंदर जो क्वालिटी है, जो स्पार्क है, जो ज्वेल है, जो डायमंड है, उसके ऊपर फोकस करेंगे कुछ मिनट के लिए। आर यू रेडी फॉर दैट? दिस इज नोन एज मेडिटेशन बट इट्स इज समथिंग वेरी इजी, राइट? सो थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाएं, रिलैक्स करें। रिमेंबर, जब हम रिलैक्स करते हैं तब हमारा ब्रेन, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन आजकल लोग रिलैक्स करना भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं। रिलैक्स करने के नाम पर क्या करते हैं? सभी को मालूम है, हाँ? क्या करते हैं? ये छोटा सा अपना फ्रेंड निकाल लेते हैं पॉकेट से, हाँ? बट रिमेंबर, ये जो स्क्रीन्स है ना, मोबाइल है या एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, ये स्क्रीन आपके ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है, रिलैक्स नहीं करता। एनी काइंड ऑफ स्क्रीन विल स्टिम्युलेट योर ब्रेन, नॉट रिलैक्स इट। और अगर ब्रेन हमेशा स्टिम्युलेटेड रहे तो क्या होगा? आप कोई गाड़ी चलाते, बाइक, कार, और कुछ नहीं तो मिक्सी है ना, कोई भी प्रकार का इंजन आप अगर कंटिन्यूस चलाते ही रहे नॉन स्टॉप, तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर में धुआं निकलने लगेगा, ठीक है ना? वही काम हम जब ये इसको यूज़ कर रहे हैं ना, कॉन्स्टेंटली यहाँ पर कर रहे हैं, इस इंजन में कर रहे हैं ऑल द टाइम, क्या होगा उसका? थोड़ा उसको रिलैक्स करना। तो इसलिए थोड़ा अपने मोबाइल को, अगर है आपके पास, एक साइड रख दीजिए। आपके हाथ में कोई चीज़ें हैं, कोई बैग, कोई चीज़ें हैं, थोड़ा समय के लिए नीचे रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए। हाथों में हम बहुत कुछ पकड़ के रखते हैं ना, जितना पकड़ के रखेंगे उतना स्ट्रेन पड़ता है। उसी तरह से माथे में भी जितनी बातें पकड़ के रखेंगे, ये भी वो भी, यहाँ पे भी स्ट्रेन पड़ता है। थोड़े समय के लिए वो सारे जो बोझ यहाँ पे रखे हुए हैं ना, कुछ समय के लिए एक तरफ रख दीजिए। सारी बातें, पास्ट में क्या हुआ एक तरफ रख दीजिए, डजेंट मैटर, पास्ट इज पास्ट। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं है तो फिर एक बार अलग रख दीजिए। फोकस कीजिए इस प्रेजेंट वैल्यूबल मोमेंट पर, फोकस कीजिए उस पर जो आपके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कौन है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ का VVIP कोई और नहीं, आप खुद हैं, स्वयं। क्योंकि मैं स्वयं ठीक हूँ तो मैं सारे जहान को ठीक कर सकती हूँ। मैं स्वयं पीसफुल हूँ, हैप्पी हूँ
तो दुनिया मेरी पीसफुल, हैप्पी बन जाती है। तो अपना ध्यान चारों तरफ से समेट कर थोड़ा सा स्वयं पर फोकस करेंगे। अपने आप से पूछेंगे, कौन हूँ मैं? क्या मैं मात्र ये बॉडी हूँ? मात्र हड्डी, मांस, नर्व्स, सेल्स, टिश्यूज से बनी हुई एक मशीन? या मैं उससे बहुत कुछ ज़्यादा हूँ? मेरे अंदर सोच, विचार, निर्णय, चॉइसेस, एक चेतना है, फीलिंग्स हैं जो कि मशीन में नहीं है। तो मैं मात्र मशीन नहीं, मैं असीम, अनंत शक्ति वाली, अनलिमिटेड क्षमता वाली एक ज्योति हूँ, शक्ति हूँ। अपने भीतर की ओर देखें और विजुलाइज कीजिए एक बहुत सुंदर जगमगाता हुआ प्रदीप। यहीं कहीं आपके मस्तिष्क के बीच में एक सुंदर उज्जवल ज्योति, जिसका प्रकाश सारे शरीर में फैल रहा है। साधारण प्रकाश नहीं, शांति का प्रकाश है। फील कीजिए कि आपसे शांति की, प्रेम की, ज्ञान की, शक्ति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ पीस। और अपने आप को एक स्वीट रिमाइंडर दीजिए, आई एम पीसफुल। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्टेबल, एकाग्र हूँ। मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, हैप्पी हूँ। मैं खुश हूँ और खुश नसीब हूँ, भाग्यवान हूँ। अपने आप से ये दोहराएं, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं एकाग्र हूँ, स्वस्थ हूँ,
खुश हूँ और अत्यंत भाग्यशाली हूँ। इन थॉट्स के साथ अपने आप को बिल्कुल स्थिर, रिलैक्स होता हुआ अनुभव करें। सारी शक्ति का केंद्र मेरे भीतर है। उस पर मैं एकाग्र होकर शक्ति की वृद्धि कर रही हूँ। सारे विश्व में ये शांति का प्रकाश फैल रहा है। सारे विश्व के परिवार को मेरे मन की शांति आराम दे रही है, रिलैक्स कर रही है, सुकून दे रही है। ओम शांति, ओम शांति। ये थोड़ा सा एक हमने मेडिटेशन का अनुभव किया, जिसकी प्रोसेस बहुत सिंपल आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ध्यान भीतर की ओर अपने ऊपर ले जाएं। दूसरों के बारे में सारा दिन सोचते हैं, कुछ समय अपने बारे में सोचें और अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। जो आप क्वालिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, उसको एफर्म कीजिए। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर पावर है, मैं हेल्दी हूँ। अच्छा बताइए, अभी जो आप बैठे थे, आप में से किस किस को अच्छा लगा? एक मोमेंट के लिए भी हाथ उठाएंगे? ओके, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों अच्छा लगा? मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कहा? क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा, इसका मतलब आपने मेडिटेट किया। बिकॉज थॉट्स विल शेप योर फीलिंग्स, योर थॉट्स विल शेप योर फीलिंग्स। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फील करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव फील करेंगे, सिंपल। सो थॉट्स विल शेप योर फीलिंग्स, सो वॉच योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स विल शेप योर वर्ड्स, and your words will shape your actions. So watch your thoughts, they will shape your feelings. Watch your feelings, for they shall become your words and actions. Watch your actions, for they shall become your habits. And watch your habits, for they shall become your character, your personality. And watch your character and personality because Swami ji, you are right. It is going to shape your destiny. So अगर अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? थॉट्स। एवरी थॉट इज मेकिंग यू, शेपिंग यू एज यू आर टुडे। तो अगर अपना भविष्य बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अच्छा रखिए, अपने लिए भी और सबके लिए। So thank you very much. Om Shanti.